کریں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر برائے جیل، خانہ جات، ورکس اینڈ سروسز سندھ علی حسن زرداری نے ان کے دفتر میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران وفود نے اپنے مسائل، شکایات اور تجاویز صوبائی وزیر کے سامنے پیش کی۔ علی حسن زرداری نے شہریوں کی بات توجہ سے سنی اور متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں، اور اس موقع پر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کا بروقت حل حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔ اس ضمن میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی خدمات اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں عملی اقدامات جاری رہیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت عوامی فلاح اور بہبود کے لیے اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھاتی رہے گی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فرقان بلال نے پریس کلب تیمرگیرہ کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے صحافیوں سے ملاقات میں میڈیا اور پولیس کے درمیان روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مثبت صحافت کی حمایت اور غیر متعلقہ عناصر کے خلاف کارروائی کا اندیا بھی دیا۔ مزید تفصیلات عبداللہ مدنی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لوور دیر فرقان بلال نے ڈسٹرکٹ پریس کلب تیمرگرہ کا گزشتہ روز دورہ کیا، جہاں انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں میڈیا اور پولیس کے درمیان بہتر رابطہ کاری کو ناگزیر قرار دیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل تیمرگرہ امجد علی خان اور ڈی ایس پی ٹریفک خان نظر خان بھی ان کے ہمراہ تھے، جبکہ پریس کلب کے صدر حلیم اسد اور دیگر ارکان نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ڈی پی او فرقان بلال کا کہنا تھا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں، ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے پولیس بخوبی آگاہ ہے۔ مثبت اور ذمہ دارانہ صحافت کو ہر سطح پر سراہا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض غیر متعلق عناصر صحافت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے بلیک میلنگ میں ملوث ہے، جن کی حوصلہ شکنی ضروری ہے، تاہم صحافت کا وقار برقرار رکھا جائے گا۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ پولیس اور میڈیا کا باہمی تعاون معاشرے میں بہتری لا سکتا ہے اور دونوں اداروں کو اپنی حدود میں رہتے ہوئے کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوور دیر میں امن و امان کا قیام اور عوام کی مال و جان کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس فورس اور عوام کے درمیان بہتر رابطہ کاری کے لیے میڈیا کا کردار اہم ہے۔ اپنے خطاب میں ڈسٹرکٹ پریس کلب تیمرگرہ کے صدر محمد حلیم اسد کا کہنا تھا کہ میڈیا اور پولیس کے درمیان اعتماد کا فروغ ضلع میں مثبت تبدیلی کا باعث بنے گا۔ عبداللہ مدنی، ہیڈ کوارٹر تیمرگرہ، دیر لوور۔ ساہیوال کے نجی کالج میں 3 روزہ سپورٹس گالا بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منعقد کیا گیا، جس میں طلباء اور طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اسپورٹس ایونٹ کے دوران مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے، جن میں کرکٹ، فٹ بال، ریس اور دیگر دلچسپ گیم شامل تھے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات دیکھیے مدثر چوہان کی رپورٹ میں۔ ساہیوال کے نجی کالج نے قائد اعظم اسٹیڈیم میں 3 روزہ سپورٹس گالا بھرپور جوش و خروش طریقے کے ساتھ منعقد کروایا، جس میں کالج کے طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سپورٹس ایونٹ کے دوران مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے گئے، جن میں کرکٹ، فٹ بال، ریس اور دیگر دلچسپ گیمز شامل تھیں۔ طلباء و طالبات نے نہایت جذبے اور محنت کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ کامیاب ہونے والے کھلاڑیوں کو انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، جس پر ان کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی۔ اور آج ہمارے کالج نے اسپورٹس ڈے کا ایک ایونٹ اناؤنس کیا تھا یہاں پہ، جس میں ہمارے بہت سے اسپورٹس سے ریلیٹڈ گیمز ہوئی، جیسے کہ بیڈمنٹن، کرکٹ، وانجو، اینڈ اس کے علاوہ بھی سیگ ریس جیسی بہت سی ریسز ہوئی، اینڈ جس میں ہم نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور ہمیں بہت مزہ آیا اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا آج کا دن، اینڈ آئی ہوپ کہ اس طرح ایونٹس ہمیں ملتے رہیں گے۔ تقریب کی کامیابی میں کالج کے اساتذہ کا کردار بھی قابل تعریف رہا، جنہوں نے ایونٹ کا انعقاد اور انتظامات میں بھرپور محنت کی۔ کالج انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی سرگرمیوں کا مقصد طلباء و طالبات میں صحت مند مقابلے کا رجحان پیدا کرنا ہے اور ان کی ہم نصابی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ اسپورٹس گالا نہ صرف طلباء و طالبات بلکہ اساتذہ اور شرکاء کے لیے بھی ایک یادگار اور کامیاب ایونٹ ثابت ہوا۔ مدثر چوہان، NTN نیوز، ساہیوال۔ جلال پور پیروالا میں بڑھتی مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث شہری موٹر سائیکل پر سفر کرنے کے بجائے سائیکل پر سفر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ سائیکلوں کی فروخت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ملک محمد نواز سے، جو اس وقت ایک دکاندار کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا۔
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे होने की वजह से जलालपुर पीरवाला के शहरियों ने जो अपने घर पुरानी साइकिलें खड़ी थी वो भी मरम्मत कराने के लिए आ रहे हैं और नए साइकिलों की भी मांग में इजाफा हो गया। मेरे साथ इस टाइम दुकानदार मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, इसकी वजह से साइकिल की मरम्मत का काम फुल ज़्यादा हो गया है और इसके अलावा न्यू साइकिल का डिमांड भी फुल ज़्यादा हो रही है और हर बंदा अपनी पुरानी साइकिलें लेके आ रहा है और बनवा के जा रहा है यहाँ से। ठीक हो गया जी, आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि लोगों ने जो अपनी पुरानी साइकिलें घर खड़ी की हुई तो उनकी भी मरम्मत का काम करवा रहे हैं और नई साइकिलें भी खरीद रहे हैं। जी, समुद्री के गांव 199 गप में 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप के दूसरे रोज़ भी मरीजों का मुआयना जारी है। आंखों की बीमारियों के लिए अद्वियात, लेंस और मुफ्त ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। इस मौके पर दी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन समुद्री के नौजवानों ने कैंप के इंतजाम कर रखे हैं। डॉक्टर्स को रिहाइश, खाना और मरीजों के बैठने और खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। इस हवाले से जानेंगे समुद्री से हमारे नुमाइंदे उस्मान कादरी से। जी बताइएगा उस्मान। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समुद्री के गांव 199 गाबे में। यहाँ पे 2 रोज़ा जो है फ्री मेडिकल कैंप जो है लगाया गया है। मेरे साथ इस वक्त ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर शहजाद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि ये जो कैंप लगाया गया है इसमें कितने मरीज़ों को चेक किया जाता है और इसमें कौन कौन सी जो सहूलियात वो फराहम की गई? दी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम इस गांव में हमारा ये 5वां कैंप है और अगर हम एवरेज निकालें तो हर कैंप में तकरीबन 1400 पेशेंट जो हैं वो विज़िट करते हैं। उसमें से 120 पेशेंट्स की हम कैटरेक्ट आई सर्जरी करते हैं, यानी कि सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करते हैं और उसमें बाईफैको करते हैं, यानी बगैर टांके वाला हम ऑपरेशन करते हैं। तो हमारी टीम एक दिन पहले आके ऑपरेशन थिएटर रेडी करती है और सैटरडे संडे हम इस सर्जरी करते हैं। इसके अलावा बाकी सर्विसेज में यानी सर्जरी के अलावा हर स्पेशलिटी का एक डॉक्टर जो है वो मौजूद होता है। वो पेशेंट को देखता है, चेक करता है, उसके मुताबिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और बाकी जो हम यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे सकते हैं वो मैक्सिमम देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि यहाँ पे जनरल मरीज़ों को भी चेक किया जाता है। इसके साथ साथ जो मेडिसिन है, जो टेस्ट हैं वो भी बिल्कुल फ्री किए जाते हैं और इसके साथ साथ जो मरीज़ों का ऑपरेट है, जो सफ़ेद मोतिया और दूसरे जो मरीज़ हैं, आँखों के अमराज के मरीज़ हैं, उनको ऑपरेट भी किया जाता है और मुफ्त जो है यहाँ पे मेडिसिन और दीगर जो है सर्विसेज दी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन समुद्री जो है उसकी जानिब से दी जा रही है। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक मंशनाबाद के निजी स्कूल में सुथरा पंजाब आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद तलबा में सफाई, माहौल दोस्ती और सेहतमंद आदात को फ़रोग़ देना था। इस हवाले से देखिए नईम शहजाद की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विज़न के मुताबिक सुथरा पंजाब के तहत मंशनाबाद के निजी स्कूल में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद तलबा में सफाई, माहौल दोस्ती और सेहतमंद आदात को फ़रोग़ देना था। तकरीब के दौरान असातिज़ा और मुक़र्रिरीन ने तलबा को सफाई की अहमियत, कूड़ा करकट मुनासिब जगह पर डालने और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखने के हवाले से आगाही दी गई। बच्चों ने भरपूर दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया और सुथरा पंजाब की मुहिम का हिस्सा बनने के अज़म का इजहार किया। स्कूल इंतज़ामिया का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए नई नस्ल में ज़िम्मेदारी और शऊर को उजागर किया जा रहा है ताकि पंजाब को साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ नईम शहजाद, NTN न्यूज़, मंशनाबाद। पंजाब भर में कारोबारी औकात से मुतालिक अहम फैसले, बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें फील्ड में चेकिंग करेंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह मुल्तान में भी दुकानें 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन ज़िलाई हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया है। जो मार्केटें हैं, शॉपिंग मॉल हैं, उनको 8 बजे उसमें 8 बजे बंद करने का कहा गया है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट और खाने पीने की दीगर जगहें हैं उन्हें
10 बजे तक खुले रहने की इजाज़त है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर और फार्मेसी वो खुली रह सकती हैं। डिप्टी कमिश्नर नुमान सदीक का कहना था कि जो भी नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी करेगा उन ताजरों पर मुकदमात भी दर्ज होंगे। इसके अलावा उन पर भारी जुर्माने भी किए जाएंगे। जी माथेलो पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई, मनशियात फरोश डीलर 5 किलो से जायद चर्च समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे परीन चंद राजपूत की इस रिपोर्ट में। मीरपुर माथेलो थाना पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई, एक मनशियात फरोश चर्च डीलर 5 किलो से जायद चर्च समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। एसएसपी गौड की मोहम्मद अनवर खैतान की हिदायत पर गौड की पुलिस का मनशियात फरोश व दीगर जराम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन। थाना मीरपुर माथेलो ने खुफिया इतला पे कार्रवाई करते हुए लिंक रोड माथेलो नजद खोसा फाटक से एक मुलजम मनशियात फरोश चर्च डीलर चाकर वल्द अब्दुल अजीज बोझदार सकना बोझदार कॉलोनी मीरपुर माथेलो 5 किलो 135 ग्राम चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को बरामद चरस समेत थाने पे ले आई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एसएसपी घोट की मोहम्मद अनवर खैतरान की जानिब से पुलिस पार्टी के लिए शाबाशी का पैगाम। कैमरामैन के साथ NTN न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमचंद राजपूत, मीरपुर माथेलो। मामू कांजन में इमाम बारगाह ज़ैनबिया में सुल्तान करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहाँ मुकर्रीन ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की असीम कुर्बानी को दीन इस्लाम की बका करार दिया। अल्लामा अली नासिर तलहाड़ा ने कहा कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान करबला में कलमा हक बुलंद करके हक और बातिल का फ़र्क वाज़ेह कर दिया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे ज़ुबैर शेख की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के इलाका मामू कांजन में इमाम बारगाह ज़ैनबिया बरमकान बाबा अहमद खान ठक्कू अवामिया कॉलोनी में 56 साल कदीमी मजलिस अज़ा मुनक़द हुई, जिससे खिताब करते हुए अल्लामा अली नासिर तलहाड़ा ने कहा कि अगर इमाम आली मकाम मैदान करबला में अपने और अपने कुनबे के पाक खून से अपने नाना के दीन की आबियारी ना करते तो शायद आज दुनिया में दीन इस्लाम का नाम लेवा कोई ना होता। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीदी लश्कर के सामने कलमा हक बुलंद करके साबित कर दिया कि वो अपने नाना के दीन ने बरहक को ज़िंदा रखने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं करते और पूरे कुनबे को कुर्बान कर दिया। अल्लामा सैयद अली रज़ा ऑफ दाऊद खेल ने खिताब करते हुए कहा कि आज हम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगर्दानी के सबब दुनिया भर में ज़लील ख्वार और रुसवा हो रहे हैं। अगर अक़वाम मुस्लिम आज भी असवाए हसैनी अपना ले तो आलम कुफर की जुर्त नहीं कि वो हमें ललकार सके। मजलिस के इख्तिताम पर झूला अली असगर अलैहिस्सलाम बरामद हुआ और मातमदारी हुई। बाद शुरका ने लंगर हसैनी तकसीम किया गया। ज़ुबैर शेख, NTN न्यूज़, मामू कांजन, फैसलाबाद। खानेवाल में भी दीगर शहरों की तरह अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होश रबा इजाफा। महंगाई के तूफान ने सफ़ेद पोश तबके को शदीद मुतासर कर दिया। अवाम परेशानी में मुब्तला हैं। मज़ीद तफसीलात जानिए खानेवाल से हमारे नुमाइंदे शेख सुहेल से। जी सुहेल। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इस हद तक इजाफा हो गया कि गरीब आदमी को जो है 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने बच्चों को नहीं खिला सकता। तो इस वक्त मेरे साथ कोली बाजार के अंदर मौजूद है कस्टमर जो यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश खरीदना आया। मज़ीद उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। सिर्फ बताइएगा अशिया LPG और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से कितना का अशिया खुर्दोनोश में इजाफा हुआ और आप क्या हुकूमत वक्त से मुतालबा करेंगे? ये जी जब से तेल महंगा हुआ, घी में, ऑयल में और आटे में हर चीज़ में इजाफा कर दिया। हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। अभी रेट बढ़ते नहीं हैं, पहले ही यहाँ बढ़ा दिए जाते हैं। पैरा फोर्स बिल्कुल नाकाम हो चुकी है जी। हम कहते हैं मरियम नवाज़ साहिबा आप खुद इसको देखें और हमें सस्ती चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। हम बहुत परेशान हैं, गरीब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आपकी मेहरबानी, हमारी इल्तिजा सुने।
जी बिल्कुल, जो सफ़ेद पोश तबका है वो पिस कर रह गया। उनका ये कहना है कि जो हालिया दिनों में जो है आयल की कीमत में और घी की कीमत में 40 से 50 रुपये फ़ी किलो में इजाफा हो गया। इसी तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा और सब्जियों में भी इजाफा हो गया। तो इन्होंने यही मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कि इनके ऊपर फिलफोर कंट्रोल किया जाए और हुकूमत वक्त से इन्होंने मुतालबा किया LPG, डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम से कम किया जाए। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTA न्यूज़।